सो हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन डेफिनेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, दैट एज डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, so thermochemical reactions can be algebraically multiplied, divided, subtracted, added as desired, or whether a reaction occurs in one step or in many steps, the sum of the enthalpies of reaction remains constant. What does that mean is that we having this C plus half O2 giving rise to CO gas. I should say this is standard enthalpy of formation of CO, and let us say this value is delta H1. Is it okay? Then this CO gas undergo combustion to form CO2, which I should say is not the enthalpy of formation of CO2, because I am using here heteroatomic molecule, which is not allowed as per definition. Definition said that you can use homoatomic molecule or you can use elementary form in such a manner that their standard heat of formation should be 0. Is it okay? It means I should say this is enthalpy of combustion of CO. Then let it be, this value is delta H2. Am I right? Then as you said कि जी हमने जो इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन ये है कि हम लिख रहे हैं दैट सी ग्रेफाइट प्लस C graphite, this is what you are saying, plus O2 giving rise to CO2 gas, and this is standard enthalpy of the formation of CO2. He is saying जो पीछे डाटा दिया गया है वहां से इस वैल्यू को निकाला जाए. That is what is the definition of Hess's law. So don't you think कि जो हमने यहां स्टेप वाइज अचीव किया वो आप वहां सिंगल स्टेप में लिख गए? So is it not that the CO here reactant is product over here? Half O2 and half O2 is O2. It means if it is delta H1 here, it is delta H2 here. What do you think will be the enthalpy of formation of CO2 as per Hess's law? You said that whether that reaction occurs in single step or it occurs in many steps, the sum of the enthalpy of reaction will remain constant. Is it not the same equation as is for the formation of carbon dioxide gas? तो वो कहता है कि भाई बेशक ये रिएक्शन दो स्टेप में हुई तब भी डेल्टा एच उतना ही है, और अगर आप अलग अलग स्टेप से ऐड करके करोगे तब भी डेल्टा एच उतना ही है, क्योंकि डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अगर आपको किसी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं भी पता है तब भी आप डाटे से निकाल सकते हो, बिकॉज एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. वी हैव डन द कन्वेंशंस दैट इफ वी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच साइन विल चेंज. इफ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डेल्टा एच विल आल्सो चेंज बाय द सेम फैक्टर. But the main thing there was that
You should always mention the physical state. So this reaction is for the formation of Al2Cl6, which is not given. It means if from here I write the value of delta H, what should I write here? Minus 1004.2. मुझे लग रहा है जो आप लोगों ने गलत किया होगा तो यही गलत किया होगा. Per mole, yes or no? The delta H for this reaction is minus 184.1 kilojoule. The first application I am discussing. First application is to find out heat of formation for those for which it is not possible experimentally. कैसे? डाटा को रिलेट करना है. क्यों रिलेट करना है? क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसलिए आप अल्जेब्रिकली किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. इट मींस द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज minus 73.2 kilojule per mole. Yes or no? Delta H for this reaction is minus 643.1 kilojoule per mole. Is it okay? So from here he is asking us that find out the enthalpy for the formation of anhydrous Al2Cl6. So it means our aim is to reach here. अगर आप कहीं इन क्वेश्चन में फंस भी जाओ तो आपको वहीं से ही हिंट मिल जाएगा. आपने कहा Al2Cl6 सॉलिड बनाना है, इसका डेल्टा H निकालना है. आपको इसी डाटे से पता लग जाएगा कि आप क्या क्या यूज करें एज पर डेफिनेशन. आपने कहा था ईदर इट शुड बी इन एलिमेंट्री फॉर्म और शुड बी इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म. सो अगर Al2Cl6 बनाना है भाई तो 2 Al ले लूंगा और Cl2 की फॉर्म में रहता है. वो मुझे कितना चाहिए वो आप देख लीजिए. मुझे वो 3 चाहिए और वो है Cl2 गैसियस. सब कुछ आपको यहां से पता लगता है. इसका मतलब इस टारगेट तक अचीव करने के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वी हैव डन ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. आई शुड से Al2Cl6 मुझे राइट साइड में चाहिए. इट मींस जो लास्ट इक्वेशन है उसको हम उल्टा कर देते हैं. जब लास्ट इक्वेशन को हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है प्लस 643. यस और नो? जब मैं लास्ट इक्वेशन को उल्टा कर देता हूं तो Al2Cl6 एक्वस लेफ्ट में चला जाता है और राइट में भी है, ये भी खत्म हो जाएगा. इसका मतलब इसका इधर जाना बता रहा है कि देखिए आप इस इक्वेशन को कुछ मत करिए. 1004.2. यस और नो? इस इक्वेशन को ऐसे रखना का मतलब कह रहा है कि आप सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि आपको क्या चाहिए HCl एक्वस, आपको फाइनल में नहीं चाहिए. आपका अभी तक एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया. आपको 2Al सॉलिड चाहिए था, आपने उसको वैसे ही रखा. आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि आपको Al2Cl6 राइट में चाहिए था. आपको Cl2 चाहिए लेफ्ट में, पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चाहिए. कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें. जब आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 6HCl गैसियस बन जाएगा. 6HCl गैसियस बन जाएगा का मतलब हुआ अगर आपके पास यहां 6 मोल बने तो 184 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 184.1 इंटू 6. जब हमने इसको किया तो हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि अब मेरे पास 3Cl2 मिल जाएगा. बट उसके साथ मुझे जो अनडिजायर्ड मिला वो मिला 6HCl गैसियस.
जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को N2 3 क्यों होगा, N2 6 होगा, क्योंकि किलो जूल, अच्छा 2 मोल है पहले, सो N2 3 2 मोल के लिए इसका मतलब ये, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये HCl गैसियस कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब हुआ HCl गैसियस 6 यहां करना है, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और वहीं का वहीं रहने देना है। इसका मतलब हुआ ये आ जाएगा -73.2 इंटू 6। अब आपको 6 HCl गैसियस 6 HCl गैसियस खत्म, 6 HCl एक्वस से 6 HCl एक्वस खत्म, आपको ये इक्वेशन इधर पहुंच गई। ये आपके पास 3H2 और 3Cl2 आया, ये देखिए 3H2 है, 3H2 है, खत्म हो गया, आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, एल्स देन दिस। इसका मतलब हुआ जो यहां से आएगा वो आपका आंसर है, जो भी आया वो आपका आंसर है। आज के बाद आप लंबे लंबे तरीके अब नहीं करोगे। क्लियर हो गया या नहीं? एक वर्जन ये भी कहता है कि जब आपने इधर 2HCl लिखा और वहां वैल्यू थी 184.1 किलो जूल, अगर कहता ये पर मोल भी होती तो भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना था। मैं बताता हूं आपको, वो कहता है कि जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 3 किलो जूल थोड़ी हुआ, किलो जूल अगर था तो किलो जूल तो वहीं रहा, 3 मतलब एक न्यूमरिक वैल्यू, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हुआ अब वो वैल्यू इतनी ही किलो जूल होगी। अगर वो, यहां सुन लेना आपने, अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 6 इंटू 73.2 किलो जूल पर मोल। वो कहता है कि अगर वो आप साथ में लिखते भी हो वो वैल्यू फिर भी 6 मोल के लिए मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको 6 न्यूमरिक से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरिक से वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। समझ रहे हो कुछ बात? वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, पर मोल वो वैल्यू फिक्स है, क्योंकि पर मोल मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ यहां से जो भी आई वो आ गई क्या? स्टैंडर्ड हीट ऑफ जी फॉर्मेशन ऑफ Al2Cl6 सॉलिड कितना है भाई? देखो किया कैलकुलेशन, -13 approximately 1352 किलो जूल पर मोल। यस नो? सेकेंड एप्लीकेशन, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन? हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि एक CuSO4 सॉलिड था, आपने उसको हाइड्रेट कर दिया, तो जब वो सॉलिड था, जब वो हाइड्रेट हुआ तब भी वो सॉलिड ही रहेगा और वो बन गया CuSO4.5H2O, जिसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं कि ये सब क्या हुआ होगा। अब यहां देखिए कि सॉलिड था पहले, अब भी सॉलिड ही है, पर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कह रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपने स्कूल में, आपके वक्त में नहीं, हमारे वक्त में ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल बनाए जाते थे। CuSO4 इम्प्योर को एक्सेस वाटर में डाल दिया जाता था और बन गया उसका एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस इज हीट और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं Hess's लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सामने ध्यान दें,
अब आपने क्या किया, आपको टीचर ने कहा देखो भाई ऐसा करो बेटा कि इस CuSO4 के सॉल्यूशन को हीट करो और इसमें से एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करो और फिर चेक करो कि क्या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया या नहीं। अगर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया तो हीट करना बंद करो और वहां थोड़ी देर के बाद क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहां अगर हीट डेल्टा H1 है एंथैल्पी और यहां अगर वही एंथैल्पी डेल्टा H2 है, इट मींस आई शुड से द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन will be equal to delta H1 plus delta H2. हमने कहा whether reaction occurs in single step or it occurs in many steps, the enthalpy of reaction remains same. So this delta H1 is called heat of hydration. Is called heat of hydration. तो इसका मतलब हुआ अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा H2। यस और नो। जिसका लिविंग एग्जाम्पल सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम सब उसको करेंगे। आइए यहां क्या बोलता है, calculate the enthalpy of hydration of anhydrous copper sulfate into hydrated copper sulfate। मतलब enthalpy of hydration पूछ रहा है, given that enthalpy of solution and hydrated copper sulfate are this and this। इसका मतलब उसने क्या दे दिया आपको, उसने enthalpy of solution दी है। कितनी दी है भाई, -66.5 दिए कि नहीं दिए, यहां नहीं दिए। गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस एंड माइनस व्हाट इज दैट ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की वैल्यू क्या है, +11.7 किलोजूल पर मोल। सो शुड आई से आवर आंसर इज -66.5 minus 11.7, yes or no? It means I should say the enthalpy of hydration will be minus 78.2 kilojoule per mole, this enthalpy of hydration. So this is what, this is application of Hess's law। वो कह रहा है कि आपने उसमें पहले लिमिटेड वाटर डाला होता तब जो डेल्टा H होता उसको क्या कहते हैं हम, दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कह रहा है कि आपने डेल्टा H जो एक्सेस वाटर निकाला उसका जो डेल्टा H है वो भी वही रहा होता अगर वो 2 स्टेप में हुआ होता। आपने उस क्रिस्टल में एक्सेस वाटर डाल दिया तो भी आप वहीं पहुंचे, आपने उसी एक रिएक्शन को 2 स्टेप में किया तब भी आप वहीं पहुंचे, एक में किया तब भी आप वहीं पहुंचे। तो कह रहा है क्योंकि डेल्टा H जो है वो स्टेट फंक्शन है, आप चाहे उस रिएक्शन को 1 स्टेप में करो चाहे 10 स्टेप में करो, द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट हीट ऑफ ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन। Heat of transition or heat of transformation is defined as the amount of heat change when one allotrope is converted into another. Transformation of one allotropic form into another is called heat of transformation or heat of transition.
एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी उसको कहते हैं, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको क्या कहा गया, आपको डाटा दिया हुआ है, आपने हेसेस लॉ लगाना है। वो कह रहा है कि कितना एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी टू कन्वर्ट कार्बन ग्रेफाइट इनटू कार्बन डायमंड, ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कहा एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है तो आपको डाटा दिया हुआ है। दिस इज, आई शुड से दिस इज combustion of carbon diamond, this is combustion of carbon diamond and this is formation of carbon graphite या decomposition of carbon dioxide। वो कहता है कि कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में क्या वैल्यू आएगी। कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, व्हाट शुड वी डू, हम पहली इक्वेशन को उल्टा कर दें, दूसरी को भी उल्टा कर दें। कार्बन डायमंड प्लस O2 इज गिविंग CO2, कार्बन डायमंड प्लस O2 गिविंग CO2। आपको पूछा कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड की वैल्यू बताएं। माय आंसर इज X माइनस Y किलो जूल पर मोल। यस नो, आपने इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, यस और नो। जब आपने इस इक्वेशन को उल्टा किया, सो इट इज CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डायमंड प्लस O2 एंड द साइन ऑफ डेल्टा H इज प्लस। आपको ग्रेफाइट जो है रिएक्टेंट साइड चाहिए था, आपने इसको भी उल्टा कर दिया। जब आपने इसको उल्टा कर दिया तो आपके पास आ गया कार्बन ग्रेफाइट plus O2 gas giving rise to CO2 gas and Y is minus, yes or no। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से आपको O2 से O2 खत्म हो गया, CO2 से CO2 खत्म हो गया, and we simply got it C graphite converted into C diamond and delta H is Y is minus, X is plus, so I should say X minus Y kilojoule per mole, which is the same. So this is enthalpy of allotropic transformation or also called enthalpy of transition. तो जितने भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, those all numericals they are ऑफ हेसेस लॉ। आपको कुछ भी करना था, आपने उसके अकॉर्डिंग ये बना दिया। क्लियर हो गया या नहीं? दिस क्वेश्चन नंबर 21 ऑल विल बी डूइंग विद मी, जैसा जैसा दिया हुआ है। फाइंड आउट डेल्टा एच कंबशन ऑफ, फाइंड आउट द डेल्टा एच फॉर आवर रिएक्शन। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट व्हाट इज योर एम। Aim will be C2H6 gas plus 7/2O2 gas giving rise to 2CO2 gas plus 3H2O gas. Yes or no? Is it okay? He has given the data formation of CO2. We said that for formation you should always form 1 mole. So this is carbon graphite plus O2 giving rise to CO2 gas, and delta H formation is, how much it is? X3. Yes, no?
Then he is given formation of, yes, water liquid. Water liquid will be formed from H2 gas plus half O2 gas. The standard enthalpy of formation of hydrogen is, yes, X2. Yes or no? Then he is given enthalpy of formation of C2H6. C2H6 means the standard enthalpy of formation is how much? X1? No, X4. It is X4. So how should I form it? 2C graphite plus 3 hydrogen gas. Am I right? Is it okay? और फिर वो कहता है एंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड. वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर लिक्विड से वाटर गैस बना. एंड द डेल्टा एच इज टी डेल्टा एस एंड हेंस टी इज T1. So should I say this value is coming out to be X1 T1. Are you getting up to here? अब आप लोगों को इस डाटे को ऐसे इंटरप्रेट करना है कि आपके पास यहां से जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो बन जानी चाहिए. कौन सी बन जानी चाहिए? जो ऊपर दी हुई है. यस और नो? अब इसको बनाने के लिए बेटा आप क्या क्या करोगे? इसको बनाने के लिए आप C2H6 कहां चाहिए? लेफ्ट साइड. So you reverse equation number 3. आप इक्वेशन नंबर 3 को उल्टा कर दो. जब आप इक्वेशन नंबर 3 को उल्टा करोगे यू विल गेट C2H6 गैस गिविंग राइज टू 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस एंड दिस वैल्यू विल बी -X4. ठीक हो गया जी? पहला टारगेट कंप्लीट है. CO2 आपको राइट में चाहिए पर 2 चाहिए. सो इसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x3 हो गया. सभी को समझ आ रहा है? वाटर के लिए मैं क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं. जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास यहां आ गया 3/2, यहां आ गया 3H2O. यस और नो? और यहां आ गया 3x2. आया कि नहीं आया? बेटा 3 से कर दिया ना सबको मल्टीप्लाई. अब मुझे देखना है कि क्या मैं ये सब करके वो अचीव कर पा रहा हूं जिसके लिए सब कुछ किया गया है. तो जरा ध्यान से देखें. ये 2C ग्रेफाइट है, ये 2C ग्रेफाइट है. यस नो? यहां 2O2 है और यहां 3O2 है. कितना हो गया? 7/2 मतलब सही है. यस और नो? यहां C2H6 गैस रिएक्टेंट में चाहिए. हां भाई सही है, रिएक्टेंट में ही है. प्लस 7/2O2 यहां से. वाटर लिक्विड यहां 3 है तो इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस नो? जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3H2O गैस से 3H2O गैस खत्म हो गया. अब बताओ कि आपके पास यहां कितना H2 है? 3H2. इसको भी 3H2 से कैंसिल कर दो बेटा. आपके पास यहां क्या बच गया? 3H2O गैस सही है, 2CO2 सही है. यस सर नो? अब आप बताओ कि डेल्टा H क्या आया? डेल्टा H फॉर दिस इक्वेशन मुझे जो लग रहा है इज 2x3 प्लस 3x2 माइनस x4 प्लस 3x1 T1. जी किसका नहीं आया हो तो बोल सकता है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
बी। समझ में आ गया? आइए, सेम तरह का क्वेश्चन है, अटेंटिव रहना है। अब ये बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है। आप सबसे पहला मैंने क्या कहा कि आप किस चीज को देखा करें कि आपका एम क्या है, वो आपको रियल पिक्चर बताएगा कि आपको क्या करना है। आपका एम क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। लो जी, हमने बना दिया वाटर लिक्विड। ये बेटा कहां कहां से बना होगा? H2 गैस से बना होगा और हाफ O2 गैस से बना होगा। यस और नो? वाटर लिक्विड के लिए बोल रहा है कि ये डेल्टा H निकालो। यस और नो? अब जो डाटा दिया आप उसकी बात करो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, H कौन है? गैस। उसको आपने तोड़ दिया, क्या बोलते थे उसको आप? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसको एटम बनाने में डेल्टा H कितना लग गया बेटा आपका? x1 लग गया। बोलो जी, सभी का हो गया। फिर वो कहता है OO की बॉन्ड एनर्जी। OO को जब आपने तोड़ा बॉन्ड तो बन गया जी 2O गैस। किसी को नहीं समझ आ रहा हो पूछ सकता है। डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन कितना हो गया जी? डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है जी x2। क्लियर हो गया जी? उसके बाद उसने तोड़ा OH बॉन्ड। ये OH बॉन्ड किसका है? वाटर का है। जब आपने वाटर को एटमाइजेशन करनी है, आपने साफ लिखा है डेफिनेशन में, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert a gaseous molecule into nascent atoms. Am I right? Gaseous. पर आपके पास क्या दिया है? वाटर लिक्विड। वाटर लिक्विड दिया ना, इसका मतलब पहले वाटर लिक्विड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर गैस में। उसको क्या बोलते हो आप? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखो बेटा उसकी वैल्यू दी हुई है जरा। यस, यहां दिखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज x4। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्या कहता है वो कहता है कि आप जो है इसका डेल्टा H निकालें। ठीक हो गया? हमें H2 कहां चाहिए? रिएक्टेंट में। कहां दिया है? पर अभी आपने वो नहीं किया। क्या? OH बॉन्ड एनर्जी। किसको तोड़ोगे? HOH लिक्विड या गैस? गैस, क्योंकि अब वो गैसियस में कन्वर्ट हो गया। जब आप H2O गैसियस को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 2H गैस प्लस O गैस। यस और नो? और इसकी वैल्यू बता सकते हो आप? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x3। बोलो जी, किसी को समझ आया? क्योंकि आपने दो OH बॉन्ड तोड़े हैं, ये भी x3 है और ये भी। क्लियर हो गया? अब ये रहा डाटा और आपने पहुंचना है यहां। अब मुझे बताओ कि यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? हम उल्टे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब हम ऊपर पहुंच रहे हैं, डाटा के पास पहुंचना है हमने। आप मुझे बताओ कि यहां से ऊपर जाने के लिए आप क्या क्या करोगे? यू नीड हाइड्रोजन गैस ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है भाई? ठीक है भाई? यू नीड ऑक्सीजन गैस बट हाफ। इट मीन्स बोल रहा है भाई इसको तो तुम क्या कर देना? 2 से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। हो गया जी? फिर पूछता है कि वाटर लिक्विड तो भाई कौन चाहिए? राइट में। पर जरा ध्यान से सुन लें पहले। आपको अभी जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी है 2H गैस शुड नॉट अपीयर एनीवेयर। इसका मतलब कहीं अगर 2H है तो उसको उल्टा कर दो। समझ रहे हो बात? आप पहली इक्वेशन को कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें 2H गैस है उसको उल्टा कर दो। इसका मतलब मैं लास्ट इक्वेशन को उल्टा कर दूं। जब मैंने लास्ट इक्वेशन को उल्टा किया तो बेटा मेरे पास बना 2H गैस प्लस O गैस giving rise to H2O gas. Am I right?
एंड द साइन विल बिकम माइनस। यहां तक सभी का आ गया। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखें कि भाई आपको एम में वाटर लिक्विड राइट में चाहिए। राइट, दिस ऑल इज हैसेस लॉ। राइट में चाहिए तो इसको क्या करो, उल्टा कर दो। जब आपने इसको उल्टा कर दिया तो डेल्टा एच का साइन, ये गैस है और ये लिक्विड है और ये साइन हो गया उल्टा। अब मैं देखूंगा क्या मैं वहां पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। देखते हैं। 2H गैस, 2H गैस, 2/2 O मीन्स 1 O। Am I right? हाफ O2 चाहिए था मुझे। HOH गैस विद HOH गैस खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ हमारे पास चाहिए जो था वो बन गया। और अब हम बोलेंगे ये जो डेल्टा एच है ना, ये डेल्टा एच किसके बराबर है, इज x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस नहीं माइनस x4 माइनस 2x3। yes or no? So what do you think the answer is? The answer is C. This was question number 24. कोई confusion? Should I move further? आइए जी, जरा ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन निकालो। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस प्लस कंबशन ऑक्सीजन। कितने कहा आपने बेटा जी? 3 CO2 गैस प्लस 3H2O liquid. 3O and 6O is 9/2 O2। क्या आपको लग रहा है कि ऊपर दिए गए डेटा से आपको यहां पहुंचना है? ठीक हो गया, यहां पहुंचना है। तो अब आप आगे देखो क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है। लिखो जी फॉर्मेशन ऑफ CO2। मैं इसको डायरेक्ट भी कर दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आपको हर स्टेप का पता लगे। फॉर्मेशन ऑफ CO2 में क्या लिखो लोगे बेटा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। This equation number 1 and this equation number 1 का डेल्टा एच क्या है बेटा? -393.5। ठीक हो गया जी, किलो जूल पर मोल। यस और नो? दूसरी बात क्या बोल रहा है जी? फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड विल बी, वाटर लिक्विड कहां से बना? H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। डेल्टा एच फॉर्मेशन इज यस -285.8 किलो जूल पर मोल। यस और नो? बात नंबर 3 क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कितनी वैल्यू दी है बेटा उसकी फॉर्मेशन की? 20.42 किलो जूल पर मोल। यस और नो? जब ये प्रोपीन बना तो कितने कार्बन चाहिए आपको? 3। क्या चाहिए? 3 कार्बन ग्रेफाइट। 3 और 3 6। आपको चाहिए 3 हाइड्रोजन क्या? गैस। यस और नो? अब वो एक और डेटा देता है, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमर समझते हो ना? किसकी? साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। लो जी एक डाटा और दिया है आपको, एंथैल्पी ऑफ आइसोमर। आइसोमर ये काय का बन गया? प्रोपीन का बन गया जी।
लिख लिया जी आपने, और इसका डेल्टा एच हो गया बेटा जी कितना, -33 किलो जूल पर मोल। जब भी आपने क्वेश्चन करने आपने डेटा के हिसाब से करने हैं और पूरे डिटेल में करने हैं, जब तक कि आपको पूरा डेटा इंटरप्रेट करना नहीं आ जाता। अब मुझे बताओ, मुझे यहां पहुंचना है, मैं क्या करूं? मैं इक्वेशन नंबर 4 को ऐसे ही रहने दूं, क्योंकि मुझे साइक्लोप्रोपेन यहां चाहिए। देखिए मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, तो इस जाने के लिए मैं क्या करूं? इस जाने के लिए मैं करूं कि इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज रहने दूं, यस नो। अब मुझे CO2 चाहिए 3, सुन रहे हो? इसलिए इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, कैलकुलेटर बाबे करते रहें। वाटर मुझे चाहिए 3, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आ गया -285.8 इंटू 3, यस नो। मुझे ये प्रोपीन नहीं चाहिए फाइनल में। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को कर दूं उल्टा, सो इक्वेशन नंबर 3 को कर दो उल्टा। जब आपने इक्वेशन नंबर 3 को कर दिया उल्टा, तो डेल्टा एच का साइन भी हो गया उल्टा। था क्या वो था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के लिए लिखा था 3 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस, यस और नो? क्लियर हो गया या नहीं? अब देखो जरा, इससे हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आपने इक्वेशन से देखना होता है। 3H2 3H2, 3 कार्बन ग्रेफाइट 3 कार्बन ग्रेफाइट, प्रोपीन प्रोपीन, कौन बच गया इस साइड? साइक्लोप्रोपेन, और 3/2 ये बचा, और ये कितना बचा? 1.5। 3 + 1.5 कितना होता है? 4.5। तो सेम है, ठीक तो बचा। उस साइड क्या बचा आपके पास? 3H2O लिक्विड, सही है। 3CO2 गैस, सही है। सो आवर आंसर विल बी डेल्टा H इज -393.5 इंटू 2 इंटू 3, यस, -285.8 इंटू 3 -20.42 -33. The answer will be 20. Pakka? So the answer for this question, which is question number 25, is B. ठीक हो गया? ठीक हो गया या नहीं? आओ जी नेक्स्ट। वो कहता है कि एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मींस कंबशन ऑफ ग्लूकोज। चलो बनाओ भाई इक्वेशन। कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 combustion will be giving rise to 6CO2 plus 6H2O 6, ये तो 6O2 हो गया जी, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, और इसके लिए वो डेल्टा एच कितना दे रहा है बेटा? डेल्टा एच का साइन लिख दूं अपनी तरफ से, यस, क्योंकि ये क्या है? कंबशन। सो इट इज -2880 किलो जूल पर मोल, बिकॉज कंबशन इज ऑलवेज रिटन फॉर 1 मोल। Am I right?
He said 25% of this energy is available for muscular work. इसका 25% अवेलेबल का मतलब हुआ हमारे पास आया 2880 इंटू 25/100 means 1/4 of this value, and this value is coming out to be -720 किलो जूल पर मोल। इतनी अवेलेबल है भाई, इतनी वैल्यू अवेलेबल है। कहता 100 किलो जूल से 1 किलोमीटर आदमी चलता है। तो ये बताओ कि अगर वो आदमी 120 ग्राम ग्लूकोज खाता है तो वो कितना किलोमीटर चलेगा। तो मैं क्या लिख दूं कि ये 720 वैल्यू कितने ग्राम के लिए बेटा, पर मोल, मतलब 180 ग्राम के लिए है। 180 ग्राम से आपको मिलता है 720, एक से कितना मिलेगा डिवाइडेड बाय 180, और कितना ग्राम ग्लूकोज खा रहा है भाई, वो 120 ग्राम ग्लूकोज खा रहा है। यस और नो? तो आप बताइए कि कितनी किलो जूल एनर्जी यहां से मिल रही है उसको, यहां से मिल रही है उसको 480 किलो जूल। अब हम लिखेंगे 100 किलो जूल से वो चलता है कितना, 1 किलोमीटर। इसका मतलब इस 480 किलो जूल से वो कितना चलेगा, इस 4.8 किलोमीटर, एंड हेंस द आंसर इज 4.8 किलोमीटर। किसी कोई कंफ्यूजन? इज इट ओके? चलिए जी, यहां ध्यान दे। पहला आपको बताया गया था कि रेजोनेंस एनर्जी से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी और मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन इज गिवन। आप जरा ध्यान दें, साइक्लोहेक्सेन इज दिस, साइक्लोहेक्सेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन, बेंजीन द वैल्यू इज दिस। तो भाई बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की, किसकी, C6H6 की, तो बन गया C6H12। तो ये बताओ बेटा कि इसके अंदर आपने कितने H डाल दिए, 3 H2 डाल दिए। इस रिएक्शन को क्या कहते थे हम, हाइड्रोजनेशन। अब आप इसका डेल्टा H निकालो कि इसके हिसाब से इसका डेल्टा H क्या आना चाहिए। आपको देखो यहां फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है ना, आपने एक फॉर्मूला किया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ sum of the standard enthalpy of formation of product minus sum of the standard enthalpy of the formation of reactant। और किसी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या होती थी, 0। इसका मतलब हुआ ये वैल्यू आपको नहीं दी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 होती है। इसका मतलब यहां से आपके पास प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन कितना है भाई, -156। यस और नो? और बेंजीन कितनी थी ये वैल्यू, +49। उधर जाके क्या हो जाएगी, -49। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई -205 किलो जूल पर मोल। कहता ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, पर एक वैल्यू देखो, साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन की उसने, समझ रहे हो, अगर साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन की तो कितने डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन की उसने, एक की और एक के लिए वैल्यू क्या दे रहा है वो आपको, -119 दे रहा है ना। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -119 किलो जूल पर मोल। अब सोचो यहां पे सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
इसका मतलब ये प्लेनर है। कब ये बॉन्ड कहीं को भागते हैं, कभी कहीं को भागते हैं, क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस। अगर ये डबल बॉन्ड है, क्या ये कहीं को भाग सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वहां sp2 है तो साथ वाला कौन है? sp3 है। अगर sp3 है तो ये बॉन्ड नहीं भाग सकता। का मतलब एक बॉन्ड के लिए अगर -119 थी तो 3 के लिए कितनी होनी चाहिए थी? तो 3 के लिए होनी चाहिए थी 3 इंटू माइनस, बेटा 3 थे ना यहां, होनी चाहिए थी कितनी? -357 किलो जूल अगर बेंजीन होती तो। इसके 3 बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन इतनी होनी चाहिए थी ना, जबकि हुई कितनी? इतनी। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? जो दोनों में डिफरेंस होगा, तो एक वैल्यू है -357, दूसरी वैल्यू है -205 मीन्स +205। सो द आंसर इज -152 किलो जूल। बोल दो जी हां। देखो यहां 3 बॉन्ड थे, तो उसने कहा जब मैं हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं इतनी हीट इवॉल्व हुई। हमने कहा कि अगर एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन के लिए 119 लग रही है, तो ऐसे ऐसे 3 बॉन्ड हो जाते तो 3 गुना लगनी चाहिए थी। तो लगनी चाहिए थी पर लगी। इसका मतलब जो डिफरेंस इन एनर्जी है, दैट इज गिविंग स्टेबिलिटी टू बेंजीन इन टर्म्स ऑफ, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। सो दिस इज हियर। लो जी, अब हम पहुंचे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, हमारा आंसर आया। अब है क्वेश्चन नंबर 49, बी अटेंटिव नाउ। आप ध्यान दें, अगर आपने कभी सुना हो थर्माइट वेल्डिंग, सुना है? नहीं सुना? वो बेटा वेल्डिंग जिससे करते हैं प्रोसेस, वो क्या कर रहा है कि आपने Fe2O3 ले लिया, ठीक है जी, और आपने ले लिया एल्यूमिनियम, ले लिया जी, एल्यूमिनियम सॉलिड है, ये Fe2O3 भी सॉलिड है, सुन रहे हो? और उस सॉलिड से आपके पास बन गया कौन? Al2O3 सॉलिड प्लस Fe सॉलिड। बन गया जी, बन गया जी। अब एलिमेंट्री फॉर्म में किसी की फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है? 0। हियर इट इज 0, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 ही आना है। हियर इट इज 0। किसी की वैल्यू दी हुई है आपको? हां दी हुई है। किसकी? Al2O3 की वैल्यू दी है। काहे की? फॉर्मेशन। कितने दी है? -1669 किलो जूल पर मोल। और भैया Fe2O3 की कितनी दी है? -833 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दी हो, रिएक्टेंट दी हो, क्या हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं? सो डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर हमने कहा प्रोडक्ट में एक तो Fe सॉलिड है जो 0 होता है, रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम सॉलिड है वो भी 0 होता है। तो यह आ गया हमारे पास -1669 माइनस माइनस हो गया प्लस 833। हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी? -836 किलो जूल पर मोल। यस और नो? अरे बेटा समझ रहे हो,
पर वो पर मोल में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अब आप जरा ध्यान दें, यहां का मतलब मुझे इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या दी है जी, डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ Fe2O3। बोलो बेटा कितनी है, 5.2 है कि नहीं है। अब बताओ मास ऑफ Fe2O3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 56, बोलो, प्लस 3 इंटू 16, देखो कितना आया, 16 3 48, 112, 8 160 आया। चेक कर लो बेटा कितना आया, 160 नहीं आया। 56 2 जा कितना होता है 112 और 16 3 जा कितना होता है 48, कितना आ गया 160। डेंसिटी ये है, मास ये है, यहां से क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ Fe2O3। बताओ जी कितना आया, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, 160 डिवाइडेड बाय 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ जी कितना आया, वो जिसको कैलकुलेशन के लिए बोला था वो सो गया। दूसरे डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दी हुई है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है बेटा 2.7। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है यहां 54, यस और नो, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है। सो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, विल बी मास अपॉन क्या, मास अपॉन डेंसिटी। सो मास कितना है जी 54, डेंसिटी कितनी है जी 2.7, वॉल्यूम कितना आ गया जी 20 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। और यहां वॉल्यूम आ गया जी 30.7 सेंटीमीटर क्यूब, यस नो। तो ये बताओ कि मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आया, इस पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 50.7, यस नो, 50.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50.7 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हीट इवॉल्व आ गई 836 किलो जूल। एक के लिए कितनी आई, क्योंकि उसने एक के लिए ही पूछा हुआ है। सो दिस विल बी योर आंसर। $16.5, so B is your answer। ठीक हो गया बेटा। आपको कहा गया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालें, डाटा दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन C3H8, C3H8 में आपने HH डाला and it get converted into C2H6 plus CH4। बोलो जी, ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस और ये गैसियस। Using the given enthalpy of combustion values, combustion of H2 दिया है, सुना, combustion of CH4 दिया है, combustion of C2H6 दिया है, combustion of carbon graphite दिया है,
और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 भी दिया है। मतलब कि आपको यहां पहुंचना है, आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन बनाओ C3H8 गैस। कैसे बनाओगे बताओ? 3C ग्रेफाइट प्लस 4H2 gas giving rise to this, and the delta H is minus 103.8 kilojoule per mole. Yes or no? अजी बोलो भी। और बोल रहा है कंबशन ऑफ H2, लिखो जी, कंबशन ऑफ H2 is not formation of water. Combustion of H2 is not formation of water, I asked. It is. So this combustion value is minus 285.8. Combustion of CH4. CH4 combustion will be giving CO2 plus 2 H2O, 2 2s are 4. CO2 is 2 2s are 4 and 2 6 means 3O2. Yes or no? And delta H for this reaction is how much? Minus 891.0 kilojoule. Yes or no? Combustion of C2H6. C2H6 की combustion करें, will be giving 2 CO2 plus 3 water, 2 2s are 4 and 3 7 means 7 by 2, and delta H for this reaction is minus 1560. Yes or no? Combustion of carbon graphite. Combustion of carbon graphite plus O2 giving rise to CO2 gas, and delta H for this reaction is minus 393.5. जी, आपको यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। यहां पहुंचने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप जो है इक्वेशन नंबर, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आप बोलोगे जी इक्वेशन नंबर 2 को उल्टा कर दो। आज इक्वेशन नंबर 2 में C3H8 कहां है? राइट में। आपको कहां चाहिए? लेफ्ट में। लो जी, लिख दूं मैं प्लस 103.8। जब मैंने इसको उल्टा किया 3C ग्रेफाइट उधर चला गया, गया कि नहीं गया? इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से 3 से। इसका मतलब हो गया माइनस 393.5 इंटू 3। जब मैंने इसको 3 से कर दिया तो फिर आपको क्या मिलने लगा? आपको मिलने लगा कि 3 से ग्रेफाइट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को माइनस कर दिया है। और H2 4H2 बन गया ना वहां। जब वहां 4H2 बन गया तो आपके पास यहां कितना होना चाहिए? वाटर भी तो कैंसिल होना चाहिए आपका। समझ रहे हो? वाटर कहां है? यहां है ना अजी, यहां है कि नहीं है? क्या करूं इस इक्वेशन को? C2H6 कहां है? पहली इक्वेशन को उल्टा कर दूं। C2H6 मुझे कहां चाहिए? राइट में चाहिए। प्लस 1560 हो जाएगा। अजी बोलो भी। और वाटर लिक्विड इधर आ जाएगा जी। उसको 3 है तो मैं इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूं जी? 3 से मल्टीप्लाई करूं। इसका मतलब हो गया माइनस 285.8 इंटू 3। अजी बोलो भी। CH4 मुझे कहां चाहिए? राइट साइड में। इस इक्वेशन को क्या कर दूं? उल्टा। उल्टा मतलब प्लस 891.0। बॉर्न हैबर साइकिल में क्या हुआ? सामने ध्यान दें।
कभी कोई पोटाशियम सॉलिड था, ठीक, तो कभी हाफ एफ था। सुन लिया? क्लियर होगी बात या नहीं? तो हमें वहां से बनाना था के एफ सॉलिड। जो जो आपने पढ़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी सॉलिड की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पड़ी जाती, तो यहां क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ दिया हुआ है, द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया है। यहां आपने इस F2 को तोड़ दिया और इसके लिए वैल्यू लगी D/2, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सिर्फ F गैस चाहिए था, 2 F नहीं चाहिए थे। ठीक हो गया? K गैस ने आयनाइज करके K पॉजिटिव बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिए कहीं ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो यहां दी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो इलेक्ट्रॉन इस K ने दिया, ये इलेक्ट्रॉन F ने गेन किया, क्या बोलते थे हम उसको, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट वाज टर्म्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन वो ले गया। अब क्या हुआ, इस K पॉजिटिव और इस F नेगेटिव के बीच में क्या फोर्स हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको क्या कहते थे आप, लाटिस एनर्जी। और उस लाटिस एनर्जी की वजह से इसको मिल गई स्टेबिलिटी। वो कहता कि इस का डेल्टा H कितना है, इस -563 किलो जूल पर मोल। तो बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहती है कि इसका पूरा डेल्टा H के अंदर कौन कौन है, देखो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस नो, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस कौन, लाटिस एनर्जी। और आपको बाकी सारी वैल्यूज दी हैं, आपको सिर्फ क्या निकालना है, लाटिस एनर्जी। तो सारी वैल्यू में इस वैल्यू को पुट कर दो, -563 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो जी दिया हुआ है 88, दिया है कि नहीं, प्लस दिया हुआ है क्या, एफ बॉन्ड एंथैल्पी कितना, 158/2, प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, देखो जरा दिए, यस, +419, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है जी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 322, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या बताया था आपको, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, माइनस, और प्लस लाटिस एनर्जी, यहां से निकल जाएगी आपकी लाटिस एनर्जी। जल्दी से कैलकुलेशन करो, और हमारे पास आ गई लाटिस एनर्जी इज इक्वल टू -563 -88 -79 -419, yes no, yes no, plus 322. The answer is 8, that is -825 हमारे पास आंसर है, yes or no. So this is what is बॉर्न हैबर साइकिल। मैंने सीधा आपको उसके बेस से एक न्यूमेरिकल करवा दिया कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है। कहता कंप्यूट द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथाइल अल्कोहल इन किलो जूल पर मोल यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है।
आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।